Hello everyone, कैसे हैं सब लोग? तो today we're going to start with calorimetry's important concepts without wasting any time since we're running out of time. So let's not waste and start with calorimetry. I am not going to explain all the topics. I'm going to discuss about some important topics, ठीक है, which may come in your board exams, ठीक है. So the very first thing which you have to remember is heat capacity, which is also known as thermal capacity, which is represented as capital C dash. Now what is heat capacity or thermal capacity? Heat capacity is defined as heat energy, amount of heat absorbed by the entire body to raise its temperature by 1 degree Celsius. जब एक पूरी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो पूरी बॉडी जितना हीट एब्जॉर्ब करेगी खुद का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, उसको उस बॉडी की हीट कैपेसिटी बोलेंगे, उस बॉडी की हीट कैपेसिटी बोलेंगे. तो हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला Q by delta T, where this Q stands for heat energy, delta T stands for change in temperature, and it is defined as amount of heat energy absorbed by the body to raise its temperature by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius is known as heat capacity or thermal capacity. Talking about the units, heat की जो यूनिट होती है वो होती है जूल्स, और टेम्परेचर की जो होती है दैट इज केल्विन. सो SI unit of heat capacity, that is C dash, is joules K raised to -1, that is joules per Kelvin. समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद जो हमने किया है that is specific heat capacity. Specific का मतलब होता है 1 और यूनिट. So what is specific heat capacity, which is represented as small c? It is the amount of heat energy absorbed by 1 gram of a body to raise its temperature by 1 degree Celsius. It is the amount of heat energy absorbed by 1 gram of a body. For an example, ये पूरी बॉडी है, उसके अंदर से 1 ग्राम काट के बाहर निकालो, उसको हीट करो, तो वो जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा खुद का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, उसको उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं. सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed by unit mass of a body. That means 1 gram of a body to raise its temperature by 1 degree Celsius. It is given by the formula small c is equal to Q upon m delta T. Talking about the units, heat energy का यूनिट जूल्स है, मास इज kg, दिस इज केल्विन. तो इसका SI यूनिट क्या बनेगा बच्चा लोग? इसका SI यूनिट बनेगा जूल्स kg raised to -1, केल्विन raised to -1. जूल्स kg raised to -1, केल्विन raised to -1, है ना? So I'll write it down here so that confusion नहीं होगा. ठीक है, C dash का जो था that is joules K raised to -1, small c का था joules kg raised to -1, K raised to -1. अभी एग्जाम में कभी एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. डिफरेंशिएट बिटवीन हीट कैपेसिटी and specific heat capacity.
specific heat capacity. Specific heat capacity. तो very first point is the definition. Heat capacity क्या है? Amount of heat energy absorbed by the body to raise its temperature by 1 degree Celsius. ये हमने डेफिनेशन देखा था. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed by a unit mass of a body to raise its temperature by 1 degree Celsius. सर ये तो क्लियर है. हम पहले पॉइंट में उसका डेफिनेशन लिख लेंगे. दूसरा क्या होगा? दूसरा जो है, इट इज डिपेंडेंट ऑन मास. जो हीट कैपेसिटी होती है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट होती है. सर कैसे सर? अगर मेरे को कोई हीट प्रोवाइड करेगा, सिंस माय मास इज डिफरेंट, तो आई माइट एब्सॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एज कंपेयर टू मी. अगर कोई पतला सा लड़का, छोटा सा बच्चा कोई है, अगर उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ही विल टेक लेस अमाउंट ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बिकॉज उसका मास कम है. तो जो हीट कैपेसिटी होती है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट होती है. एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. कोई पूछेगा सर क्यों मास पे डिपेंडेंट नहीं होता? क्योंकि इसमें तो हर बार बॉडी का सिर्फ यूनिट मास लेते हैं ना. यूनिट मास मतलब सिर्फ 1 ग्राम ऑफ बॉडी लेते हैं. तो 1 ग्राम तो 1 ही ग्राम है. फिर मेरा खुद का 1 ग्राम दूं या किसी और का 1 ग्राम दूं, दैट विल रिमेन 1 ग्राम. सो दैट इज व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. Third point is its SI unit is joules Kelvin raised to -1. Its SI unit is joules kg raised to -1, Kelvin raised to -1. So these are the three main differences between heat capacity and specific heat capacity. I hope it is clear, है ना? Moving on to next now. Alright, so next is specific latent heat. भाई latent का मतलब होता है hidden. Now, what is specific heat, latent heat? दूसरी बात, ये जब भी होगा ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा. ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा. You have to remember this कि ये जब भी होगा ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा. सो व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट? ठीक है ना. स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय अ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर. अगर कोई बॉडी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, क्यों कर रहा है? खुद का स्टेट चेंज करने के लिए, तो उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं. पर ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. एग्जांपल लेते हैं भैया, लेट्स टेक 1 ग्राम ऑफ आइस. लेट्स टेक 1 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, which is at 0 degree Celsius. So once you start heating this ice, its temperature will not rise. उसका temperature initially नहीं बढ़ेगा. First it will get converted into water. At 0 degree Celsius. Then its temperature will start increasing. That means कि ये देखो state change हुआ. Ice was in the solid form. Water is in liquid form. जो स्टेट चेंज हुआ है, कैन यू सी दैट? वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है. सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट.
I could have explained you in detail, but we are running out of time. So you can remember this. The specific latent heat is the amount of heat energy absorbed by a unit mass of a body, to change its state at a fixed temperature. And it is represented by capital L, and it is given by the formula Q by M. It is given by the formula Q by M. तो उसका जो भैया SI यूनिट बनेगा हीट का होता है जूल्स, मास का होता है किलोग्राम, सो दैट इज जूल्स पर किलोग्राम, दैट इज जूल्स kg रेज़ टू -1. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो L इज इक्वल टू जूल्स kg रेज़ टू -1. बच्चे हमेशा इनके यूनिट्स में कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी एमसीक्यूज में भी आता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. मैंने बॉक्स में कर दिया है. Now, there are two more things. That is latent heat of fusion of ice, and next latent heat of freezing of ice. ठीक है. अभी इसके अंदर क्या होगा, अगर इस केस में आइस फ्रीज हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, आइस मेल्ट होगा. कैसे होगा, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल ले लिया है. 1 ग्राम ऑफ आइस ले लो भाई, जो 0 डिग्री सेल्सियस में है. ठीक है. जब ये हीट एब्सॉर्ब करेगा, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर एट द सेम टेंपरेचर. दैट इज इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ओनली. So the state has been changed at a constant temperature. So this type of heat absorbed by ice is known as latent heat of fusion of ice. Fusion of ice के अंदर ice जो है वो melt होगा. So amount of heat energy absorbed by unit mass of ice at 0 degree Celsius to get converted into water at 0 degree Celsius. To get converted into water at 0 degree Celsius is known as latent heat of fusion of ice. Now what is latent heat of freezing of ice? Exactly उसका उल्टा. Let's take a water at 0 degree Celsius. Now अगर ये water heat को liberate करेगी और release करेगी, then it will get converted into ice. Then it will get converted into ice at the same temperature. That is known as latent heat of freezing of ice. ठीक है. That is known as latent heat of freezing of ice. बोर्ड के अंदर आपको ग्राफ के बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, दिस यू हैव टू रिमेंबर. पूरे चैप्टर के अंदर ये तीन ही फॉर्मूले हैं. जो आपको याद रखने हैं. एक चीज हमने और करी थी, दैट इज मेथड ऑफ मिक्सचर, which is also known as principle of calorimetry. बड़ा सिंपल था भाई, ये क्या बोलता है कि when the two bodies or when the two substances are mixed together, one is at higher temperature and other is at lower temperature. Let's say there are two bodies A and B. Let's say this is at 70 degrees Celsius and this is at 30 degrees Celsius. So when they are mixed together, can we say this will lose heat? ये heat को lose करेगा and this will gain heat. ये heat को gain करेगा. तो method of mixture बोलता है कि the amount of heat lost by this body is always equal to amount of heat gained by this body. जब दो बॉडी को मैं मिक्स करता हूँ, both are at different temperatures, then the amount of heat lost by one body is always equal to amount of heat gained by another body. ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इट इज बेस्ड ऑन, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, बिकॉज इसके अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि देयर इज नो हीट लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर.
कि एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी हीट लॉस नहीं हुआ है। वी आर अज्यूमिंग दिस, इसके अंदर ये अज्यूम किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? मूविंग अहेड, अभी हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो एक ये सम है अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, बहुत ही बढ़िया सम है, ठीक है, इससे आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हम लोग पहले एक ये सम सॉल्व करते हैं। लेट्स रीड द सम। द सम स्टेट्स द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर at 50 degree Celsius is lower to 5 degree Celsius by adding certain amount of ice to it. Find the mass of ice added. Given है specific heat capacity of water दिया हुआ है, specific latent heat of ice दिया हुआ है. We have to find the amount of ice added. Find the mass of ice added. मतलब एक पानी है यार, एक पानी है, पानी जो है एक ग्लास के अंदर पानी है जिसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस। जब उसके अंदर आइस डाला तो उसका टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो उसने बोला है कि उसके अंदर कितना आइस डाला है। अगेन दो चीजें इसके अंदर आ गई, वाटर और आइस। कभी भी सम के अंदर अगर दो चीजें आती है, सो विदाउट थिंकिंग मच ऑलवेज यूज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो जब मैंने पानी के अंदर आइस डाला तो वाटर विल लूज हीट एंड आइस विल गेन हीट। तो वी कैन यूज दिस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो मैं बोलूंगा बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय वाटर हीट लूज करेगा will be equal to heat gained by ice, heat gained by ice. ना लोग मिस्टेक एक ही चीज की करते हैं, ठीक है, वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे हीट गेन बाय आइस के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे mc डेल्टा टी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। अगर तुमको प्रॉपरली सीखना है तो तुमको पहले एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जैसे मैं बना रहा हूं। जब पानी के अंदर उन्होंने आइस डाला तो क्या आइस डायरेक्टली मेल्ट होगा क्या, या क्या आइस का टेम्परेचर डायरेक्टली डिक्रीज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो पहले जब उसने आइस ऐड करा तो इट वाज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, एंड देन वही वाटर जो ग्लास के अंदर वाटर है उसके टेम्परेचर पे आएगा, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। ये सम सॉल्व करने के सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं। ऐसे टाइप ऑफ सम सॉल्व करने के सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं जो तुमको याद रखना है। पॉइंट नंबर वन, if state is changed, then use Q is equal to ml। मतलब अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा m into n, दैट इज लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगेगा। दूसरा, if temperature is changed, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है then use Q is equal to mc delta t, then use Q is equal to mc delta t। बस अगर तुमने ये दो पॉइंट याद रख दिए then it will become very easy to solve this kind of a sums। Remember this, whenever the state will change, अगर state change हो रहा है तो use Q equal to ml, and whenever temperature is getting changed use Q is equal to mc delta t। समझ में आ रहा है? तो जब उसने पानी के अंदर आइस डाला तो आइस इनिशियली तो 0 डिग्री पे होगा, जब उसको ग्लास के अंदर डाला तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू करेगा। जब वो मेल्ट होना शुरू करेगा तो टेम्परेचर कहाँ ही बढ़ रहा है भैया, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। तो जब तक टेम्परेचर कब तक सेम रहेगा, जब तक पूरा आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ तो यूज ml का फॉर्मूला। फिर जब आइस पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो गया, फिर वो उसका टेम्परेचर लेगा, उस पानी का टेम्परेचर लेगा जो ऑलरेडी ग्लास के अंदर था। ऑलरेडी जो ग्लास के अंदर था उसका फाइनल टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी लेगा भाई 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके अंदर भी फॉर्मूला लगेगा mc डेल्टा t, क्योंकि इस केस में इसका टेम्परेचर चेंज हुआ। तो करेंगे कैसे? हीट लॉस बाय वाटर में एक ही केस होगा, दैट इज mc delta t, that is mc delta t। let's assume m1 as mass of water, heat gained by ice में दो प्रोसेस होगा।
दो प्रोसेस होगा, पहले तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, मैं आइस के वेट को M2 ले रहा हूं तो M2L, उसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, सो दैट इज M2C डेल्टा T, M2C डेल्टा T। अब लेट्स पुट दिस मास जो था वो 170 ग्राम था, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, वी हैव डिवाइडेड बाय 1000। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी थी? हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर थी 4200 इनटू पानी का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? 50 - 5 दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। आइस का मास अपने को फाइंड करना है, उसका लेटेंट हीट दिया हुआ था 336,000, दिस इज M2, दिस इज 4200 एंड पानी, आइस का जो पानी बना उसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? 0 से 5 हुआ, सो मल्टीप्लाई बाय 5। सो भाई 2 0 गए, 1 0 गया, तो बचा क्या? 17 into 42 into 45 दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ गया? 336,000 M2 प्लस 0 0 5 4 10 21,000 M2। So this is 17 into 42 into 45 ऐड करेंगे, so this is 357,000 M2। ठीक है, अब ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो गया, तो 17 into 42 into 45 upon 357,000 that is equal to M2। Now let's start dividing now। 17 ones are 17 twos are 34, remainder is 1, 17 ones are 0 0 0, 21 ones are 1000, 21 twos are, ठीक है, 45 twos आ गया 90 upon 1000 किलोग्राम दैट इज इक्वल टू M2। बहुत छोटा आंसर आएगा, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, कट हो गया, M2 इज इक्वल टू 90 ग्राम। तो उस 170 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर उन्होंने 90 ग्राम ऑफ आइस डाला, तब उस पानी का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, थोड़ा सा भी, क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि आप लोगों ने ये ड्रॉ करा है। Once you draw this, then it will become very simple, and then you have to remember this as well. Please remember this, that whenever state is changing, use Q equal to ml, and when temperature is changing, use Q equal to mc delta T। Q is equal to mc delta T। क्लियर है? चलो मूविंग अहेड, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। So let's consider this sum। ये क्या बोल रहा है? That amount of heat energy required to convert 1 kg of ice at -10 degree Celsius to water at 100 degree Celsius is 7,77,000 joules। So we have to calculate the specific latent heat of ice. Given is specific heat capacity of ice and specific heat capacity of water is given। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, एक आइस है जो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, उस आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये प्रोसेस के लिए जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो 7,77,000 है। तो उन्होंने पूछा है कि भाई लेटेंट हीट कितना है आइस का। जैसे मैंने लास्ट सम में बोला कि क्या आइस डायरेक्टली वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा, क्या नहीं होगा। मैंने तुमको क्या सिखाया कि पहले अपने को वो फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। पहले देखो मेरा आइस है, पहले मेरा जो आइस था वो -10 डिग्री सेल्सियस पे था। अब क्या होगा? अब वो आइस बनेगा हीट एब्जॉर्ब करने पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद क्या होगा? फिर वो आइस बनेगा, आइस जब 0 डिग्री पे होगा और उसको हीट मिला तो वो वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद अगर उसको और हीट करेंगे तो मेरा वाटर पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे मैंने बोला था लास्ट सम में कि कभी भी टेम्परेचर चेंज होगा तो mc डेल्टा T लगाना है, स्टेट चेंज होगा तो ml लगाना है, टेम्परेचर चेंज होगा तो mc डेल्टा T लगाना है।
समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे इफ यू कैन सी कि आइस जो दिया है, आइस जो मास, आइस का जो मास दिया हुआ है दैट इज 1 kg, दैट इज 1 kg है ना। डेल्टा टी कितना होगा? डेल्टा टी कितना होगा? डेल्टा टी मेरा जो आइस के केस में होगा दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेट्स से दिस इज डेल्टा T1। फिर जब आइस वाटर में बन जाएगा तब मेरा डेल्टा टी कितना हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 0 से वो 100 पे पहुंचा। तो कहना इससे टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये मेरा Q1 होगा पहला स्टेज, दूसरा स्टेज Q2 होगा, तीसरा स्टेज Q3 होगा। Q1 के अंदर सिंस टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आई वुड राइट इट एज mc डेल्टा टी। Q2 के अंदर स्टेट चेंज हो रहा है, आई वुड राइट इट एज ml। Q3 के अंदर इट वुड बी mc डेल्टा टी, इट वुड बी mc डेल्टा टी। टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब दोनों ने दे रखी है दैट इज 7,77,000। मास दे रखा है 1 kg, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दे रखी है, क्योंकि पहले केस में तो वो आइस ही है ना, पहले केस में तो वो आइस ही है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दे रखी है दैट इज 2100। आइस के केस में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? आइस के केस में टेम्परेचर चेंज हुआ 10। पानी का अभी आइस जब वाटर बनेगा मास विल रिमेन सेम दैट इज 1 kg। लेटेंट हीट मुझे फाइंड करनी है, मास इज अगेन 1। अब वो वाटर बन गया है, वाटर का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 4200 इनटू टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? 0 से 100 डिग्री, तो 100 हो गया। तो नॉर्मल सॉल्विंग है ये। तो दिस इज 777,000, दिस इज 21,000 प्लस L, दिस इज 4,20,000। सो अगर दिस इज 777,000 अगर ऐड करेंगे, सो दिस इज 441,000 प्लस L को मैंने वहां भेज 441 को मैंने दूसरे साइड भेज दिया, सो दैट इज 441,000, सो दैट इज इक्वल टू 336,000 जूल्स kg रेज़ टू -1, जूल्स kg रेज़ टू -1। तो ये था मेरा लेटेंट हीट ऑफ आइस। समझ में आ रहा है? वापस मैं बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, once you are able to draw this flow chart then your sum will be simple. You need to understand that ice will not be directly converted into water. First it will come to 0 degree. Once it has come to 0 degree, then it will be converted into water. Then on further heating it will go to the final temperature which is given in the question. So in this question there were 3 processes involved. इसके अंदर टोटल 3 प्रोसेस इन्वॉल्व था। समझ में आ रहा है? प्लीज कॉपी कर लो यार, प्लीज कॉपी कर लो। Now let's look at this sum now. ठीक है ना। ये सम क्या बोलता है कि एक सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम्स melts at its melting point of 800 degree Celsius by providing heat at the rate of 100 watt. At the rate of 100 watt, the time taken for it to completely melt at the same temperature is 4 minutes. What is the specific latent heat of fusion of the metal? What is the specific latent heat of the fusion of the metal? ठीक है, इसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होगा ये अपने को फाइंड करना है। तो इफ यू कैन सी इसके अंदर गिवन क्या है बच्चा लोग, इसके अंदर गिवन है कि उसका मास जो दिया है वो 150 ग्राम में है। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। मैंने उसको डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एट द रेट ऑफ 100 वॉट का मतलब होता है पावर दिया हुआ है उन्होंने 100 वॉट का, टाइम दिया हुआ है 4 मिनट और टाइम हमेशा सेकंड्स में होता है, सो दैट इज 4 into 60, सो दैट इज 240 सेकंड्स। तो उसने बोला व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेटल। एक मेटल है जिसका मास 150 ग्राम है और वो मेल्ट हो रहा है। कब मेल्ट होगा? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे 800 डिग्री सेल्सियस पे जब उसको हीट करेंगे बाय गिविंग द पावर ऑफ 100 वॉट और वो मेल्ट हो रहा है 4 मिनट के अंदर।
तो उसने बोला है कि उसका लेटेंट हीट कितना है। लेटेंट हीट मतलब L पूछा है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। मुझे पता है पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, बट यहाँ पे अपनी एनर्जी क्या है Q/T, और यहाँ पे हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। उसने बोला भाई वो 800 डिग्री पे ही मेल्ट हो गया, ठीक है, 800 डिग्री पे ही मेल्ट हो गया मतलब 800 डिग्री में ही उसका स्टेट चेंज हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, P विल बी इक्वल टू m इंटू L/T। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। पावर का वैल्यू रखो, सो दैट इज 100, मास दिया था उसका 150 अपॉन 1000, L मुझे फाइंड करना है एंड टाइम इज 240, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 100 150 into L अपॉन 1000 into 240, ठीक है ना। 1000 को मैंने वहां भेज दिया, 240 को मैंने वहां भेज दिया, अपॉन 150 into L, दैट इज इक्वल टू L। 0 0 कट हो गया है, 5 20 जा 5 3 जा 3 8 जा 0 जा, तो ये कितना हो गया 8 2 जा 16, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 किलो सॉरी joules per kilogram, which can also be written as 1.6 into 10 to the power 5 joules per kilogram। बड़ा बेसिक सम था, ऐसे सम्स एग्जाम में 2 मार्क के लिए आते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, एक मेटल दिया था 150 ग्राम का, उन्होंने बोला वो मेल्ट हो रहा है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ही। जब उसने बोल दिया कि भाई मेल्ट हो रहा है, मतलब मैं समझ गया कि स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। और वो कौन से स्टेट में है वो उन्होंने ना पूछा है, ना मेरे को उससे कोई लेना देना है। उसने सीधा बोल दिया कि जब उसको 100 वॉट का पावर प्रोवाइड करेंगे या 100 वॉट के पावर से हीट करेंगे तब वो 4 मिनट में मेल्ट हो रहा है। तो उसका लेटेंट हीट कितना था जो मैंने निकाल लिया, बहुत ही बेसिक सम था ये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्लीज कॉपी कर लो। और एट दिस सम सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आई गॉट एन आइडिया, जब भी मैं कोई सम सॉल्व कर रहा हूं, वंस यू सी द क्वेश्चन यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड देन चेक करो कि क्या मेरा सॉल्यूशन और आपका सॉल्यूशन सेम है, ठीक है। इससे क्या होगा, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाइल सॉल्विंग इट। सो प्लीज रिमेंबर दिस, लेट्स सी दिस सम नाउ। दिस सम स्टेट्स दैट अ रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर at 20 degrees Celsius to ice at minus 10 degrees Celsius in 73.5 minutes. Calculate the average rate of heat extraction. Calculate the average rate of heat extraction in watt. मेरे को watt में निकालना है, मतलब भैया मेरे को ये तो समझ में आ गया कि मेरे को पावर निकालना है, ये तो मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। So we'll write mass is given as 100 ग्राम, और मैं कुछ भी कन्वर्ट भी नहीं करूंगा, पता है क्यों, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। जब सब कुछ ग्राम के टर्म्स में दिया है तो मैं मास को एज इट इज रखूंगा। मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि वाटर जब 20 डिग्री सेल्सियस पे था तो क्या वो डायरेक्ट आइस बनेगा क्या -10 डिग्री सेल्सियस पे? नहीं बनेगा, राइट। तो कैसे होगा, लेट्स ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट। पहले वाटर होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, हीट को एक्सट्रैक्ट किया तो वाटर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और हीट को एक्सट्रैक्ट किया तो वाटर बनेगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और हीट को एक्सट्रैक्ट किया तो आइस बना -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ mc डेल्टा टी, स्टेट चेंज हुआ mn, temperature change हुआ mc delta t. So there are total 3 processes involved like Q1, Q2 and Q3. Now उन्होंने टाइम दिया हुआ है 73.4 मिनट, टाइम हमेशा सेकंड्स में होता है, डेसिमल निकाला into 60 00 कट, दैट इज 734 into 6 सेकंड। सारा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे क्यों करूं, जब मुझे पता है सब कट होने वाला है तो मैं क्यों करूं? We don't have that much of time, and जितना तुम चीजों को मल्टीप्लाई करोगे उतना तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, तो कीप इट। मैं चीजों को सिंपलीफाई सिर्फ तभी करता हूं जब उसको फाइंड करना होता है। जब कोई चीज फाइंड ही नहीं करनी है तो व्हाई वुड वी मल्टीप्लाई वेस्ट आवर टाइम?
if I multiply this bigger number, so there are chances कि मेरा multiplication गलत हो, और multiplication अगर यही गलत हो गया तो मेरा आगे का सम भी गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है? अब मेरा पिक्चर बड़ा क्लियर हो गया है, उसने मेरे को पता है कि उसने मेरे को पूछा पावर है, अब मुझे पता है पावर होएगा क्या, हीट एनर्जी बाय टाइम, पर इसमें हीट एनर्जी का क्या एक ही प्रोसेस है क्या बच्चा लोग? नहीं, तो यहाँ पे कहना है सिर्फ हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन D। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? समझ में आ रहा है ना? नाउ पहले प्रोसेस में क्या होगा? पहले प्रोसेस के अंदर क्या होगा बच्चा लोग? पहले प्रोसेस में होगा mc डेल्टा t प्लस दूसरे प्रोसेस में क्या होगा? स्टेट चेंज हुआ mn, तीसरे प्रोसेस में क्या होगा? mc डेल्टा t द होल अपॉन टाइम। टाइम कितना था? 734 into 6, 734 into 6। so now let's substitute the value। मास कितना था? मास दिया हुआ था 100 ग्राम, ठीक है? C मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पहले केस में वाटर था, so that was 4.2, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ था? that is 20 प्लस मास विल रिमेन सेम, लेटेंट हीट कितना दिया है आइस का? that is 336 प्लस मास विल रिमेन सेम अगेन, that is 100। ये अब आइस बन गया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 2.1, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? 0 से -10 पे 10। the whole upon 734 into 6, if you multiply this, so that is 8400, if you multiply this, that is 3600, and if you multiply this, that is 2100 upon 734 into 6. now you have to add this up, let's add this up, 3600, that is 2100, this is 8400, 0 0 11 4 2 6 14, 44100, 44100 upon 734 into 6। now let's try to cancel out with 6, 6 7s are 42, remainder is 2, 21, 6 3s are 18, remainder is 6 7s are 21, 5, so that is 6 5s are 30, and zeros are 735। I'm so sorry, यहाँ पे 73.5 का बच्चा लोग, मैंने यहाँ पे गलती से 4 लिखा है। सी, मैं तुमको बोल रहा था कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मेरे से हो गई है। तो मेरे को क्या आया? 7350 अपॉन 735 अपॉन 735 कट किया, आंसर आया 10 वोल्ट। तो अगर उसको 10 वोल्ट का पावर सप्लाई करेंगे तब जो पानी है रेफ्रिजरेटर के अंदर 100 ग्राम का, विच इज एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो 73 मिनट्स लेगा, लगभग सवा घंटा लेगा आइस बनने के लिए एट -10 डिग्री सेल्सियस। समझा कैसे किया? समझा? चलो आगे करेंगे हम लोग, कॉपी करो। let's discuss this sum now, let's discuss this sum। ये सम बोल रहा है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन अ 1.25 किलोवाट केटल। एक केटल है जिसके अंदर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। भाई केटल होती है ना गर्म पानी करने की, उसके अंदर उन्होंने कितना पानी डाला हुआ है? 1 किलोग्राम का पानी डाला हुआ है। उन्होंने क्या बोला कि उस केटल के अंदर, उस केटल का जो पावर है वो 1.25 किलोवाट का है। तो उन्होंने पूछा है कि उस केटल के अंदर जो पानी है जो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको अपना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम दैट वाटर विल टेक इन द केटल to reach its boiling point, that is 100 degrees Celsius. So we have to find the time. Pause it and try it by yourself. Meanwhile, I am solving it here. Pause it. Now, यहाँ पे mass दिया हुआ है 1 kg. Since this is given in terms of gram, so we'll try to convert it into grams only. Power दिया हुआ है 1.25 किलोवाट। पावर होता है वाट के अंदर, डेसिमल निकाले और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया मैंने, सो दैट इज इक्वल टू 1250 वाट। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा भैया?
25 से उसके मेल्टिंग पॉइंट 100 पे पहुंच गया, 100 माइनस 25, 75 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस। ना पावर का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज Q by T, सो दैट इज mc डेल्टा T by T, करेक्ट। ना पावर दिया हुआ है 1250, मास अपना आ गया है 1000, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 4.2, चेंज इन टेम्परेचर इज 75 अपॉन टाइम, टाइम को इधर ले लिया 1000 इंटू 42 इंटू 75, डेसिमल निकाला नीचे 10, दिस इज 12508282, क्लियर है। 5 2s are 5, 25s are 25, 1s are 25, 3s are 3 2s are 6 into 42, 6 2s are 12, that is 252 seconds, ठीक है। 252 seconds is equal to 4 minutes 12 seconds, 4 minutes 12 seconds। तो उस केटल को 4 मिनट 12 सेकंड लगेंगे पानी के टेम्परेचर को 25 डिग्री से 100 डिग्री पहुंचाने के लिए। बड़ा बेसिक सम है, बड़ा बेसिक सम है। तो पावर के सम भी पूछे जा सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। अभी हम थोड़ा डिफिकल्ट सम करेंगे जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इन्वॉल्व हो, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। तब तक ये कॉपी कर सकते हो तुम लोग। Alright, this sum looks interesting. थोड़ा complicated sum लग रहा है. Let's try to understand by reading the sum. Calculate the mass of ice. Calculate the mass of ice needed to cool 150 gram of water contained in calorimeter of mass 50 gram at 32 degrees Celsius, such that the final temperature is 5 degrees Celsius. Such that the final temperature is 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक कैलोरीमीटर है जिसके अंदर पानी है, कितना 150 ग्राम का, ठीक है। अभी वो जो कैलोरीमीटर है वो खुद भी 50 ग्राम का है, वो खुद भी 50 ग्राम का है, और वो दोनों का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है। जब उसके अंदर आइस डालेंगे, जब उसके अंदर आइस डालेंगे तो जो मिक्सचर है उसका फाइनल टेम्परेचर हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने बोला है कि कितना ग्राम ऑफ आइस डाला है, उन्होंने बोला है कितना ग्राम ऑफ आइस डाला है। ये जो सम था वो 2017 में आया था, 2017 में आया था फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क के लिए सम आया था। I repeat the sum. There is a calorimeter of mass 50 gram. In that there is a water. There is a water of 150 gram. ठीक है, both are at 32 degree Celsius. उसने बोला how much ice is needed to bring the temperature of water to 5 degree Celsius. मतलब उस पानी के अंदर हम कितना आइस डाले कि वो जो टेम्परेचर होगा वो 5 डिग्री सेल्सियस पे होगा। Of course, in this principle of calorimeter will come into play. हीट जो है वो वाटर और कैलोरीमीटर दोनों मिलके हीट को लॉस करेंगे, बिकॉज दोनों इनिशियली 32 डिग्री सेल्सियस पे था। जिसने कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 1, ठीक है, मेथड ऑफ मिक्सचर के ऊपर, वहां पे कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हीट मेजर करता है, कैलोरीमेट्री। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कैलोरीमीटर व्हिच इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है। तो वो हमेशा उसके मिक्सचर का टेम्परेचर ले लेता है। तो जो टेम्परेचर पे पानी रहेगा वो सेम टेम्परेचर पे कैलोरीमीटर भी रहेगा। तो यहाँ पे विल यूज बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री which states that heat lost by water and calorimeter, ये दोनों मिलके हीट को लूज करने वाले हैं। that will be equal to heat gained by ice, correct। now अभी वाटर के केस में फॉर्मूला लगेगा m of water c of water delta t, मतलब मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर प्लस डेल्टा टी प्लस कैलोरीमीटर भी तो हीट लूज कर रहा है, तो उसका होगा मास ऑफ कैलोरीमेट्री इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमेट्री इनटू डेल्टा टी। लोग अक्सर यहाँ पे मार खाते हैं, कि आइस का, वो लोग आइस के लिए भी डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाते हैं जो कि एकदम गलत है।
मैं बार बार हर समय बोल रहा हूं कि क्या आइस डायरेक्टली 5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा क्या? नहीं। तो उसके लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। आइस पहले होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब उसको पानी के अंदर डालेंगे तो वो वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर वो मिक्सचर का टेम्परेचर ले लेगा तो वो वापस वाटर बन जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे दो टेम्परेचर इन्वॉल्व है भैया, यहाँ पे दो टेम्परेचर, दो स्टेज इन्वॉल्व है। यहाँ पे लगेगा ml क्योंकि स्टेट चेंज होगा, और यहाँ पे लगेगा mc डेल्टा t। तो यहाँ पे लगेगा m of I that is mass of ice into L of I that is latent heat of ice plus m of ice जो मास का आइस होगा वो जब मेल्ट होगा और वाटर बनेगा तब भी वो सेम ही रहेगा ना, into C of W into C of I into C of I, अरे सॉरी into C of W। अब तो वो पानी बन गया, तो m of I into C of W into delta T। As in what I'm trying to tell you is कि आइस के केस में दो केस होंगे, ठीक है। पहले वो अपना स्टेट चेंज करेगा तो मैंने ml लगाया, दूसरे केस में टेम्परेचर चेंज होगा तो मैंने mc डेल्टा t लगाया। मैंने दोनों जगह पे m of I इसके लिए लिखा है कि जो मास आइस का रहेगा वो वाटर में कन्वर्ट करने के बाद भी मास सेम ही रहेगा, तो m of I, ठीक है। और ये पानी बन गया तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लगेगा। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। मास ऑफ वाटर दिया था उन्होंने 150 ग्राम, सो दैट इज 150। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.2, और पानी कितना टेम्परेचर चेंज किया, पहले 32 डिग्री था फिर 5 हो गया, तो 32 माइनस 5 27। मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना था 50। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 0.4 इनटू इसका भी टेम्परेचर 27 से चेंज हुआ। मास ऑफ आइस मेरे को फाइंड करना है, लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है दैट इज 330 प्लस मास ऑफ आइस पता नहीं है, हीट कैपेसिटी इज 4.2, फिर वाटर का जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो हुआ 5 से। ना अभी मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा कैलकुलेशन है भैया, 0 तो खत्म हो गया, दिस इज 30, 54 का 60, 630 into 27, ये तो मेरे को देगा 2, so that is 54, this is 330 m of I, this will give me 21 m of I, ठीक है ना। अभी 0 81 का 8, 156 162 और 8 170 प्लस 54, ये मेरे को देगा 351 mi, so 4, this is 6017064 upon 351, that is equal to m of I। I hope ये बार मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी है। 2 और ओके 20 नहीं, ये 540 होना चाहिए, बच गया 540 होना चाहिए, तो दिस इज 0 415, this is 5 17550। ट्राई करते हैं 5 से, 5 1 5, अरे वाह, सो ये 1 जा, ये 5 जा, सो m of I is equal to 50 grams, m of I is equal to 50 grams, मतलब 50 ग्राम ऑफ आइस लगेगा, 50 ग्राम ऑफ आइस लगेगा पानी के टेम्परेचर को 32 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने के लिए। समझा हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए, समझ आ ही जाएगा। प्लीज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, वी डोंट हैव मच टाइम नाउ। लेट्स सी probably the last sum from this chapter. Let's read the sum. 2 kg of ice melts when water at 100 degrees Celsius is poured in a hole drilled in a block of ice. What mass of water was used? ठीक है, मतलब एक आइस क्यूब था which was around 2 kg, अंदर एक होल को उन्होंने ड्रिल किया और उसके अंदर पानी डाला। जब उसके अंदर पानी डाला, ठीक है, तो वो पानी जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे था, और आइस जो है वो पूरा का पूरा मेल्ट हो गया। तो उन्होंने बोला कि कितना मास ऑफ वाटर उसके अंदर ड्रिल करके डाला था, कितना मास ऑफ वाटर जो था वो उन्होंने ड्रिल करके डाला था। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझा सबको?
है ना। तो अगेन आइस जो है वो हीट लूज करेगा, वाटर जो है वो हीट को, वाटर जो है वो हीट को लूज करेगा, आइस जो है वो हीट को गेन करेगा। तो हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में। सो दिस इज बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री I would say heat lost by water will be equal to heat gained by ice, heat gained by ice। अभी वाटर जो है वो 100 डिग्री के ऊपर है, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और आइस मेल्ट हो रहा है, तो कहना ही से कि वो जो मिक्सचर होगा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो हीट लॉस्ट बाय वाटर में कैन बी से मास ऑफ वाटर इनटू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। whereas in case of आइस का सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होगा। 2 किलो आइस का वो पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया, तो उस केस में उसका फॉर्मूला लगेगा ml। तो ये I जो है दैट इज मास ऑफ आइस। अब मास ऑफ वाटर में को फाइंड करना है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 4200, पानी 100 डिग्री पे अंदर डाला है आइस के अंदर, और उसके बाद सब कुछ मेल्ट हो गया, पूरा आइस मेल्ट हो गया, तो उसके अंदर का पानी भी 0 डिग्री पे पहुंचेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर आइस के लिए कितना हुआ, 100 डिग्री हुआ। मास ऑफ आइस मेरे को फाइंड करना है, लेटेंट हीट दिया हुआ है, सॉरी, मास ऑफ आइस इज गिवन एज 2, latent heat of ice is given as 336,000। ना ये दोनों वहां भेज देता हूं, बड़ा सिंपल सा है। सो 2 into 336,000 अपॉन 4200 into 100, 2 0 गए, 1 0 गया, 6 7 जा, 6 0 जा, 6 5 जा 30, 6 6 जा, ठीक है, 7 10 जा, 7 8 जा, so that is 16 upon 10, that is 1.6 kg। तो 2 kg ऑफ आइस को अगर मुझे कंप्लीटली मेल्ट करना है, so we'll need 1.6 kg of water, to completely melt 2 kg of ice, समझ में आ रहा है सबको? अगर समझ गया है तो प्लीज देख लो और अच्छे से रिवाइज करना चाहिए तो वापस मेरे वीडियोस बार बार देखो ये सम्स के लिए, एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।